Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Idris, physics teacher from Muswa College, Chakwar. Dear students, subscribe my YouTube channel for getting latest video of your physics class. Dear students, today our lesson is about the exercise problems. Now we start our exercise problem. Question number 1 is a light year is the distance light travel in 1 year. How many meters are there in 1 light year? So our problem, numerical problem, our exercise problem is that light travels distance, light year mean which distance which is traveled by light in 1 year. Question is that how many meters are there in 1 light year? So we have to convert our light years into meters. So given data is that time t. It is a 1 year, and this means you know it that 1 year it contains a 365 days. So we convert this 365 days into multiply with 24. It converted into hours, and then we multiply 60 with again that it converted into the minutes, and then we again multiply with 60, it converted into the seconds. So first we converted our time, that is a 1 year, into seconds, and then speed of light v, which is a 3 into 10 is power 8 meter per second. We have to find out distance s, how my distance covered by light in 1 year. So we have to convert this distance into a meter. So dear students, our formula is S is equal to VT. You are using this formula, and here we are saying that light travels 1 year. That is called a light year. And according to our definition, light travels and cover distance in 1 year. That is called a light years. So S is equal to VT. There V is the speed of normal objects, and here we will change this formula. S is equal to CT. CT is here speed of light. Here we replace V with C, यानी C आपके पास क्या speed of light है, तो S is equal to CT हम लिखेंगे. और ये देखें आप पास इस फार्मूले में हमने जो स्पीड यूज की है वो हमने 3 × 10⁸ हमने यूज किया है. तो ये आपके पास क्या है, V की जगह हमने C रिप्लेस किया है. C आपके पास क्या स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि अब हम स्पीड को जो है डील कर रहे हैं. हमने जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है विच इज कवर्ड बाय लाइट इन 1 GL. तो सो हमने क्या किया है, V की जगह C हमने यूज किया है, और C आपके पास के स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड की लाइट है. एंड देन आफ्टर दैट T इज द टाइम, जो कि अभी हमने 1 year को क्या किया है, टाइम में यानी सेकंड में कन्वर्ट किया है. इसे क्यों किया है, बिकॉज अवर SI यूनिट इज सेकंड. SI यूनिट फॉर टाइम इज सेकंड. सो हमने इस टाइम 1 year को हमने किस में किया, सेकंड में कन्वर्ट किया है. आफ्टर मल्टीप्लाई we have to get this answer, that is distance covered by light in meters, and this is the 9.5 10⁻15 meter. तो ये आपके पास डिस्टेंस है जो लाइट ईयर में लाइट ने एक साल में क्या किया है, कवर किया है. These students now come to our second question, that is exercise problem 2. It consists 3 parts. Number 1 part, how many seconds are there in 1 year? So this is our question. एक साल में कितने सेकंड होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है. तो so we will convert 1 year time into seconds. So first we know that 1 year is equal to 365 days, and 1 day is equal to 24 hours, and 1 hour is equal to 3600 seconds. या आप इसे क्या कर सकते हैं, 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, मल्टीप्लाई अगेन 60 करें, तो क्योंकि वो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो सो हम क्या करेंगे, 1 आवर में सेकंड को फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 3600 सेकंड जी. तो सो हमारे 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो उसका जो तरीकाकार है, दैट इज 1 ईयर 365 डेज will multiply with the 24. It will convert it into hours, and then again it will be converted multiply with 3600. Why? Because 1 hour contains
3600 second. So after multiplication, it will contain a 3.153 3.1536 10 is power 7 second. So by this way, we converted our 1 year into seconds. So simple method is that we convert 1 year into number of days, that is 365 days estimatedly, and then multiply 24. It will convert it into number of hours and then multiply into seconds. Or we can also multiply hours with 60. It will convert it into minutes, and then again multiply with 60. It will convert it into seconds. So इस तरीके से डी स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, 1 year को सेकंड में चेंज कर लिया है. नाउ बी पार्ट इज हियर, हाउ मेनी नैनो सेकंड्स इन 1 year. हाउ मेनी नैनो सेकंड इन 1 year. नैनो जो होता है 10 पावर -9 के इक्वल होता है जी. तो सो ये छोटी यूनिट है जी. नैनो सेकंड क्या है, सेकंड से बहुत छोटी यूनिट है. तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, वी हैव टू कन्वर्ट 1 year इनटू नैनो सेकंड जी. तो सेम लाइक दैट 1 year सेकंड इन 1 year. तो ये अभी हमने अबव क्या की कैलकुलेट किया, इसी को हमने लिख लिया. 1 second में जो सेकंड्स होते हैं वो आप पास ये है जी. अभी हमने अबव पार्ट ए में हमने क्या किया है, 1 year को सेकंड में चेंज किया है. दैट इज 3.1536 × 10 is power 7 second. तो ये आप पास 1 year क्या होता है, इतने सेकंड्स के इक्वल होता है. एंड देन ये देखिए हमने 10 पावर 9 से हमने क्या कराया, इसे मल्टीप्लाई कराया जी. क्यों कराया है, बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट आवर सेकंड इनटू नैनो सेकंड्स. वी वांट टू कन्वर्ट आवर टाइम इनटू नैनो सेकंड, फ्रॉम सेकंड टू नैनो सेकंड. सो मल्टीप्लाई विद 10 पावर 9. इसकी एग्जांपल ऐसे ही ले लें, जैसे आपके पास 1 घंटा है, 1 आवर है, तो आप उसे क्या करना चाहते हैं, मिनट में चेंज करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई 60 करते हैं. उसे आप सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई 60 फर्दर अगेन करते हैं, ताकि सेकंड में आ जाए, मिनट से सेकंड में आ जाए. और सेकंड से क्या होता है, नैनो सेकंड में क्या करना है, तो 10 पावर 9 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा. सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसे नैनो सेकंड में चेंज करते हैं. तो सो हमने क्या किया है, 10 पावर 9 से मल्टीप्लाई कराया है, क्योंकि एक सेकंड में जो नैनो सेकंड होते हैं 10 पावर 9 के बराबर होते हैं. जिस तरह 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, 1 किलो को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से उसे मीटर में चेंज करते हैं. यानी जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आप चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, then you have to multiply it. Then you have to multiply it. Same like that, second is a larger unit and nanosecond is a very small unit. So we will multiply with 10 power 9. यानी एक के आगे 9 जीरो लगा देंगे, तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, नैनो सेकंड में चला जाएगा. तो सो हमारे पास क्या है, ये नैनो सेकंड में टाइम आ गया. दैट इज 3.1536 10 is power 16 into ns, मतलब नैनो सेकंड जी. तो सो हमने इस तरीके से क्या कर लिया, नैनो सेकंड में चेंज कर लिया. नाउ सी पार्ट इज हाउ मेनी years are in 1 second. हाउ मेनी years are in 1 second. ये अब रिवर्स बैक हो गया जी. यानी अब आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं. तो डेफिनेटली क्या करते हैं, फिर रिवर्स काम करते हैं, डिवाइड करते हैं. जैसे हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे थे, चेंज कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे थे. जैसे हमने कहा था 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, हम 1 किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. इस तरह जब हम 1 घंटे को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं सेकंड्स में, तो मल्टीप्लाई 60 करते थे. और इसी तरह से सेकंड्स को नैनो सेकंड में जब चेंज किया, तो हमने 10 पावर 9 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया. अब कहते हैं कि हमने क्या करना है, हाउ मेनी years in 1 second जी. तो हम क्या करेंगे, 1 सेकंड को 1 year पे डिवाइड करेंगे जी. तो एक ईयर में जो सेकंड होते हैं वो कितने होते हैं, 3.1536 10 is power 7 जी. तो अब हमने क्या किया, एक सेकंड को 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 3.153 10 is power 7. तो ये आपके पास क्या कर देगा, ईयर्स में कन्वर्ट कर देगा. जैसे 1 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना, तो हम क्या करते हैं, 1000 पे डिवाइड करते हैं. 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, इट विल कन्वर्ट टू द इन किलोग्राम. तो सो सेम लाइक दैट, जब हम 1 सेकंड को पूरे ईयर्स में डिवाइड करेंगे, और एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं ये भी हमने कैलकुलेट किए हैं, तो देन इट विल कन्वर्ट दिस 1 सेकंड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स. तो कहते हैं कि हमने जब ये डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया है, 3.17 × 10 is power -8 सेकंड जी. यानी ये आप पास जो है एक जो सेकंड है, इसमें इतने ईयर्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं जी. तो सो हमने इस तरीके से क्या किया है, इसको years में चेंज किए, that how many years in 1 second. Dear students,
Question number 3, problem number 3 is that the length and width of a rectangular plate are measured to be 15.3 centimeter and 12.80 centimeter respectively. Find the area of the plate जी. तो हमने area of plate क्या करना है, find out करना है जी. So this is the area of plate. We have to find area of the plate. So हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसकी लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी गिवन है, और हमने क्या करना है, उसके एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो डी स्टूडेंट, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमेशा ये याद रखें कि हम जो है उसका क्वेश्चन स्टेटमेंट को, न्यूमेरिकल जो स्टेटमेंट है उसको हम जो है गौर से पढ़ते हैं, ध्यान से स्टडी करते हैं, एंड देन उसमें गिवन डाटा अंडरलाइन करते हैं. तो यानी गिवन डाटा हम लिखते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं. तो गिवन डाटा क्या है, लेंथ ऑफ प्लेट गिवन है, दिस इज द लेंथ इज इक्वल टू 15.3 सेंटीमीटर, and width of the plate W it is given also 12.80 centimeter. So we have to find out area. तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लिया, हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास इस क्वेश्चन स्टेट में पूछा क्या गया है, यानी कि गिवन डाटा कौन सा है और करना क्या है वो हमने हाईलाइट कर लिया. और इससे क्या होता है, इजी हो जाता है फार्मूला तलाश करना कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है. तो डी स्टूडेंट्स, आपके पास जो एरिया का फार्मूला है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. ये आपके पास एरिया का फार्मूला है, एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. तो अब हमने क्या कर दिया है, इसमें ये वैल्यूज पुट करनी, 15.3 सेंटीमीटर, 12.80 सेंटीमीटर. तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आंसर क्या है, 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर जी. आप देखें कि ये हमारे पास आंसर आया है और उसमें हमने इसे क्या किया, राउंड ऑफ कर लिया जी. तो कहते हैं कि अब हमने एक रूल पढ़ा था कि आप जो अपना आंसर है आप कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर सकते हैं. तो वो रूल मैंने बताया था कि हमने उस फिजिकल क्वांटिटी जो कैलकुलेट की है उसमें लीस्ट वो फैक्टर देखना है विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर और लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. अब इसमें देखें लेंथ में जो है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है. सो अगर हमसे पूछा जाए कि हमने कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर क्या करना है, तो हम जो है इसको देखकर करेंगे. इसमें 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं. आप इसमें देखें 15.3, इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसी एक को फॉलो करते हैं. तो मोस्टली हम क्या करते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को फॉलो करते हैं और उसके बाद क्या होता है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को फॉलो करते हैं. तो हम इसमें देखें तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसमें 3 है, जबकि इसमें क्या लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 4 है. सो इसका मतलब क्या, लीस्ट 3 है. तो हम अपना आंसर क्या करेंगे, ये हमारे पास आंसर आया था ना 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसमें नंबर ऑफ डेसिमल लीस्ट काउंट कितने हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5 हैं जी. तो हमारे पास लीस्ट इधर क्या है, ये 3 है जी. इसमें इसका मतलब 3 तक हम क्या करेंगे अपना आंसर राउंड ऑफ. तो ये देखिए हमने फिर 3 नंबर ऑफ जो है सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने अपना आंसर क्या किसे राउंड ऑफ किया है. दैट इज अ 4 and we drop 4, then 8 is there, 8 is greater than 5, so 5 raised to 6. so 196 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या है, फाइनल आंसर आया है. तो ये इस मुतलका आपने एक शार्ट क्वेश्चन पढ़ा था कल, मैंने लास्ट सेशन में से एक्सप्लेन किया था एक्सपेरिमेंटल डाटा के हवाले से. तो उसमें यही बताया गया था कि आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है is much as accurate if it contain the least measurement in one factor which has a least number of significant figure of decimal places, and you have to round up your answer up to the least number of significant figures. So इस तरीके से कल हमने डिस्कस किया था. तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है then you can ask question. Dear students, our next numerical, that is a exercise problem number 4. Add the following masses given in kg up to appropriate precision. These masses are 2.189, second is 0.089, and third one is 11.8, and fourth is 5.32. So these students, these masses are given. We have to add them. Means some of the masses we have to find out, and also we write our answer up to appropriate precision. So let we suppose that our mass M1 is, and that is 2.189 kilograms.
ये हमने सपोज कर लिए फर्स्ट मैस क्या है उसको हमने m1 सपोज किया दैट इज 2.189 किलोग्राम and second mass is we suppose that it is m2 is equal to 0.089 kilogram and third mass 11.83 which is equal to m3 and fourth number mass is m4 that is 5.32 kilogram. So our target is that we have to find out the sum of masses. तो हमने sum of mass करना है तो सम क्या करना है सबको ऐड करना है सिंपल वे से तो आप पास ऐसे आप पास क्या टोटल सम ऑफ मैसेज हमने सपोज किया दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 तो सो हमने क्या किया सारी मैसेज को ऐड कर दिए तो डी स्टूडेंट्स में एक तो जब इन नंबर्स को ऐड कर रहे होंगे तो आपने डेसिमल प्लेसेस का खास ख्याल रखना है जी आपने डेसिमल प्लेसेस का खास ख्याल रखना है जब वर्टिकल ऊपर नीचे लिखेंगे तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ही आना चाहिए ठीक है जी डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ही आना चाहिए यानी आपने जब इन अमाउंट्स को लिखना है तो डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखना है एक तो फिर सेकंड स्टेप क्या है कि हमने क्या किया इनको ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आया है फाइनल आंसर आया है यानी आफ्टर एडिशन हमारे पास ये आंसर आया है और आगे हमें ये भी कहा गया है कि वी हैव टू राइट आवर आंसर अप टू अप्रोप्रिएट डिसीजन यानी इसको राउंड ऑफ करना है कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना है तो ये अब हमने देखना है तो अप्रोप्रिएट प्रिसीजन की बात हो रही हो तो फिर हम क्या देखते हैं लीस्ट डेसिमल प्लेसेस को बात करते हैं आप इनका एनालिसिस करते हैं जो आपके पास मैथ्स M1 है उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं ये देखें आगे आपके पास मैथ्स M2 है इसमें क्या है 3 डेसिमल प्लेसेस हैं यानी डेसिमल प्लेसेस का मतलब इशारिये के बाद कितने डिजिट्स हैं जी इसको डेसिमल प्लेसेस कहते हैं और इस M3 में देखें तो 1 डेसिमल प्लेस है और M4 को देखें तो आपके पास इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं जी इसका मतलब क्या है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के आपके पास ये इसको सर्कल कर रहा हूँ इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है यानी 1 डेसिमल प्लेसेस है जी इसका मतलब क्या होगा इशारिये के बाद हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए और बाकी को क्या करना चाहिए राउंड ऑफ करना चाहिए जी तो जी देखते हैं हमने राउंड ऑफ करते हैं कहते हैं 8 इज ग्रेटर देन 5 तो सो अगला जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो बढ़ जाएगा वो 9 है तो क्या होगा 10 हो जाएगा उसका कैरी क्या चला जाएगा 3 को मुंतकिल हो जाएगा वो 4 हो जाएगा जी सो इस तरीके से हमने क्या किया राउंड ऑफ किया है हमारे पास जो फाइनल आंसर दैट इज 19.4 किलोग्राम तो इसमें देखें तो इसको हमने राउंड ऑफ करके आप अपडेट प्रिसीजन तक राउंड ऑफ कर दिया है और इसमें सिर्फ क्या 1 डेसिमल प्लेसेस है वही हमारा जो अकॉर्डिंग टू रूल है सो इसी तरीके से ये हमने यहाँ देखें लीस्ट आपका ये जो फैक्टर है वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है और लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है सो इसको हमने लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक जो है राउंड ऑफ किए हैं सो ये हमारा पास क्या है फाइनल आंसर है तो इसमें डी स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन हो then you can ask. Dear students, our now next problem solving, that is exercise problem number 5. Our problem is that find the value of g and its uncertainty using t is equal to pi l over g square root. So we have to find from the following measurements. Length of simple pendulum L is equal to 100 centimeter. Time for 20 vibration t is equal to 40.2 second and length was measured by the meter scale of accuracy 1 millimeter and time by the stopwatch of accuracy up to 0.1 second जी डी स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और उसकी लेंथ क्या आपके पास लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन तो डी स्टूडेंट जैसे आपको तरीकाकार बताया है कि हमने क्या करना है स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है उसमें जो डाटा गिवन हो उसको लिखना है और फिर उसमें ये भी फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्या चीज फाइंड आउट करनी है व्हाट इज क्वेश्चन मार्क तो वो हमने लिख के उसके बाद हमने डिसाइड करना है कौन सा फार्मूला है और डाटा को कन्वर्ट करना है एंड देन वी हैव टू सॉल्व अवर न्यूमेरिकल जी तो इसमें डी स्टूडेंट देखें लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन 100 सेंटीमीटर सो वी डिवाइड इट बाय 100 so by this way we convert this in meter because जब आप पास न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें डिफरेंट यूनिट्स हों तो हम उसे क्या करते हैं पहले मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट में यूज करते हैं या ऐसा यूनिट सिस्टम हम उसे क्या करते हैं यूज करते हैं जी टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन व्हिच इज गिवन दैट इज 40.2 सेकंड दिस इज आपके पास सेकंड
factor is given, and least count of meter scale, it is a 1 millimeter जी. तो हम क्या करेंगे, इसे मीटर में क्या करेंगे, चेंज करेंगे. तो सो हमने 1 मिलीमीटर को क्या कर दिया, मीटर में चेंज कर लिया, एंड अब बाय डिवाइडिंग 1000 जी. तो उसको हमने डिवाइड 1000 किया और इस तरीके से हमने इसे मीटर में चेंज कर लिया. एंड आफ्टर दैट लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच दैट इज गिवन 0.1 सेकंड, एंड वी हैव टू फाइंड आउट फाइनली वैल्यू ऑफ जी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. दिस इज अवर क्वेश्चन एंड इट इज अ गिवन डाटा. सो वी विल फाइंड आउट अवर ग्रेविटेशनल वैल्यू ऑफ जी. तो डी स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप हमने फाइंड आउट करने हैं, हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. क्योंकि सिंपल पेंडुलम के फार्मूले में देखें दैट इज टी इक्वल टू पाई एल ओवर जी. इसमें हमें टाइम पीरियड चाहिए, लेंथ चाहिए, ऑलरेडी इट इज गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ जी. तो वी विल रीअरेंज दिस इक्वेशन. तो बिफोर वी विल रीअरेंज दिस इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट जी, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द टाइम पीरियड टी ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम. आई टेक इट. तो सो टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो आप पास क्या है, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन, दैट इज टाइम फॉर गिवन वाइब्रेशन, टोटल टाइम फॉर गिवन वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन. ये आप पास क्या इसका फार्मूला है. तो सो डी स्टूडेंट्स, इसमें टाइम फॉर टोटल वाइब्रेशन स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किए गए, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या है, 20 है, और इसके लिए जो टोटल टाइम लगे वो क्या है, 40.2 सेकंड है, विच इज गिवन जी. तो सो हमने क्या कर लिया, इसको इंसर्ट कर दिया एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या है, 20 है, हमने इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दी. तो आफ्टर कैलकुलेशन, तो ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या आ गया, 2.01 सेकंड आ गया है जी. आफ्टर देन हमने क्या किया, ये देखें फार्मूला अप्लाई कर दिया, दैट इज टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी अंडर द रूट. दिस इज द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ जी, ये देखें फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को जरा रीसेट करना होगा, क्योंकि जो जी हमारे पास इस फार्मूले में वो अंडर रूट के अंदर है, इसे डायरेक्ट निकालना आसान काम नहीं है. फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों साइड पे स्केयर लेंगे. स्केयर आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में बाई डिटेल में, तो दोनों तरफ स्केयर ले लिया, तो इसे ओपन किया, ये टी स्केयर बन गया, आगे 2 का स्केयर 4 एंड देन पाई स्केयर, एंड स्केयर रूट जो है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये आप पास एल ओवर जी आ गया जी. उसके बाद हमने इस इक्वेशन को क्या किया है, रीअरेंज किया है. इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है, तो इसमें देखें जी जो नीचे डिनोमिनेटर में थी, इधर ऊपर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जी टी स्केयर बन गया, और टी स्केयर इधर क्या है, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया जी. क्योंकि हमें टी स्केयर की जरूरत नहीं है, हमें जी की जरूरत है जी. सो हमने क्या किया, जो जी इधर डिनोमिनेटर में है, इसको हमने इधर क्या कर लिया, इधर मल्टीप्लाई करा लिया, तो इस तरफ जी. तो ये आपका जी टी स्केयर बन गया. और अगले स्टेप में हमने क्या कर दिया, टी स्केयर की हमें जरूरत नहीं थी, तो ये देखें टी स्केयर को हम जो मल्टीप्लाई हो रही थी इधर, उसको हमने इधर डिनोमिनेटर में ले आया, डिवाइड होगी. अब ये हमारे पास जी का क्या रिक्वायर्ड फार्मूला बन गया, दैट इज जी इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर इनटू एल डिवाइडेड बाय टी स्केयर. तो ये हमने क्या कर लिया, इसको फार्मूला हमने रीसेट कर लिया, रीअरेंज कर लिए फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी. अब हमने क्या कि इसमें इन फैक्टर्स की वैल्यूज पुट कर दी है, वो तो वैसे ही नंबर है. पाई की वैल्यू 3.14 होती है इसका स्केयर, एंड लेंथ की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर थी, वो हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी, और टाइम पीरियड टी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 2.01 इसका स्केयर. तो कहते हैं आफ्टर कैलकुलेशन ये हमारे पास आंसर आया है, दैट इज 9.76 मीटर सेकंड इनवर्स 2. तो यूं हमने इस तरीके से क्या कर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. आफ्टर देन दैट वी हैव टू फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन लेंथ. हमने अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी, ये असल में हमारे इसके साथ था, टारगेट था कि हमने टाइम पीरियड टी फाइंड आउट करना था, फिर साथ हमने क्या करनी थी, वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी थी. और वैल्यू ऑफ जी हमने फाइंड आउट कर ली. पहले हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया, दूसरे स्टेप में अगला हमारा टारगेट था जी फाइंड आउट करना, जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब कहा जा रहा है कि इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है वो भी हमने फाइंड आउट करनी है जी. तो आप अनसर्टेनिटी क्या है उसका तरीका आपको टॉपिक्स में बड़ी डिटेल बताया था. quantity least count divided by quantity measured and multiply 100 divide 100, and by this way we will get our percentage uncertainty. तो so uncertainty in length जो है,
तो ये आपका 0.001 लिख के ये आपके पास क्या लीस्ट काउंट है डिवाइडेड बाय इट्स मेजरमेंट दैट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द क्वांटिटी मेजर्ड क्या लें multiply 100 by 100 after then that we have to get a 0.1%. ये अनसर्टेनिटी क्या है लेंथ में है जी। इसी तरीके से अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, उसमें हमने टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने स्टडी की थी। तो उसका जो फार्मूला था टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने का, तो वो आपके पास क्या लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ये आपके पास क्या उसका फार्मूला है। तो हमने क्या किया लीस्ट काउंट हमारे पास स्टॉप वॉच कितना है 0.1 सेकंड है एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो ये हमारे पास का लीस्ट काउंट इस तरीके से है दैट इज अनसर्टेनिटी जो आई है 0.005 सेकंड आई है। आप इसमें हमने क्या करनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा आपके पास अनसर्टेनिटी दैट इज द least count divided by total number of vibration, least count divided by total number of vibration, and by this way हमने क्या किया है इसमें मल्टीप्लाई 100 by 100 यानी लीस्ट काउंट ये आपका 0.05 ये आपके पास क्या है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच एंड डिवाइडेड बाय टाइम मेजर्ड टोटल टाइम फॉर सिंपल पेंडुलम एंड मल्टीप्लाई 100 by 100, तो आपके पास का 0.25% के अनसर्टेनिटी इसमें आई है। 0.25% अनसर्टेनिटी हमने इसमें क्या की है गेन की है। सो बाय दिस वे इस तरीके से हमने किया जी। अब हमारे पास इसका जो फार्मूला है, अब इसमें देखें तो इसमें दो फार्मूले इकट्ठे अप्लाई हो रहे हैं, एक पावर फैक्टर का फार्मूला है और दूसरा आपके पास क्या है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दोनों इसमें फार्मूले क्या हो रहे हैं यूज हो रहे हैं जी। तो ये देखें पावर फैक्टर का फार्मूला पहले यूज हो रहा है क्योंकि अगर इसमें फार्मूले में देखें तो इसमें पावर फैक्टर मौजूद है। तो यहाँ आप देखें पावर फैक्टर क्या है टी स्क्वायर है, यहाँ पर इसमें देखें फार्मूले में इसमें पास क्या है 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दैट फैक्टर जी। ये हमने केस ऑफ पावर फैक्टर में हमने क्या किया था बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था जी। तो सो 2 इसकी पावर है मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम टी प्लस आपके पास क्या है अनसर्टेनिटी इन द लेंथ जी। तो दूसरा क्योंकि आपस में डिवाइड हो रहा है तो उसकी जब डिवाइड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो फैक्टर उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। ये हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर क्लियर ना हो रहा तो मेरा टॉपिक दोबारा से आप सुन सकते हैं असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, उसमें ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्कस्ड हैं। तो ये हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ क्या कि इसमें ऐड कर दिया जी। तो इसी फार्मूले में पावर फैक्टर वाले में देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है 0.25% है मल्टीप्लाई 2 प्लस हमारे पास क्या है परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ क्या 0.1% है। इन सारों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो हमारे पास ये टोटल अनसर्टेनिटी आई है 0.1% आई है जी। यानी हमने जो वैल्यू ऑफ जी ये जो फाइंड आउट की है, ये आपका सर्कल में करो वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट की है, इट हैज अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1%। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इस मेजरमेंट का क्या लेंगे 0.1% लेंगे, कहते हैं वो हम कैलकुलेट करें तो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी आ जाती है आफ्टर कैलकुलेशन। तो ये हमारे पास क्या है 0.06 आ जाती है, 0.06 आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतनी अनसर्टेनिटी आ जाती है। और फिर हम क्या करते हैं इसे प्लस माइनस करते हैं, प्लस का मतलब ये एक्चुअल से ज्यादा हो तो हम इसे क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं माइनस करते हैं ऑब्जर्व रीडिंग में से। अगर माइनस साइन हो जाए नेगेटिव एरर है तो हम फिर क्या करते हैं उसको कैलकुलेट करने के बाद ऐड करते हैं ऑब्जर्व रीडिंग में। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने अनसर्टेनिटी हमने क्या की फाइंड आउट की है। तो ये आपके पास 0.6% अनसर्टेनिटी और आफ्टर दैट जो है ये हमने कैलकुलेट किया है तो ये हमारे पास प्लस माइनस जो है 0.06 आ गया। इस तरीके से ड्यू स्टूडेंट्स हमने क्या किया है इसमें मेजरमेंट्स हमने कर लिए जी। इसमें ड्यू स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस।